Yeah, good evening everyone. This is videography of some of the examples of exercise 6.2 class 9th mathematics. As you are watching example number 4 first, the figure is given to you, and in the given figure on my left hand side, PQ is parallel to RS. Angle MXQ is given to us 135 degree and angle MYR is given to us 40 degree. We have to find angle XMY. That's the question. I have done a little alteration in the figure. As you can see, I have written angle MXQ as angle 1, angle MYS as angle 4, angle MYR as angle 5, angle XMB as angle 2 and angle YMB as angle 3. तो बेटा गिवन है PQ और RS आपस में पैरेलल गिवन है. एंगल 1 यानी कि MXQ आपको 135 गिवन है और एंगल 5 यानी कि MYR आपको 40 डिग्री गिवन है. ये गिवन है आपको, राइट. आपको फाइंड क्या करना है, एंगल XMY, ये आगे वाला एंगल 2+3 आपको फाइंड आउट करना है. गॉट इट. So there is a little construction I have done. I have drawn a line AB. As you can see, AB I have drawn parallel to PQ. I have taken it as equation number 2. I have drawn this line AB parallel to PQ through point M as it is shown in the figure. जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पर, वैसे मैंने ये ड्रॉ की है. तो नाउ मूविंग ऑन इन द प्रूफ, यू कैन सी सबसे पहले इक्वेशन 1 मैंने दी है PQ पैरेलल टू RS और इक्वेशन 2 दी है AB पैरेलल टू PQ. इफ़ यू विल कंपेयर these two, then all three lines will be parallel. AB parallel, सर अभी वीडियोग्राफी कर रहे हैं. AB parallel to PQ parallel to RS, right? ठीक है, बीच में कुछ पूछना नहीं है सर से. AB parallel to PQ parallel to RS we have. I have given it as equation number 3. सबसे पहले सूर्या ध्यान दीजिए, अगर AB और PQ आपस में पैरेलल हैं, ये बाय इक्वेशन नंबर 3 तीनों लाइन्स हमारी पैरेलल आ गई थी, बट आई हैव टेकन AB पैरेलल टू PQ फर्स्ट ऑफ ऑल. तो एंगल 1+2 का सम 180 क्यों है, आप बता सकते हैं? वेरी गुड, को इंटीरियर एंगल्स. एंगल 1+2 इक्वल टू 180 है. यहाँ पर AB पैरेलल टू PQ है एंड MX इज द ट्रांसवर्सल. And you know that in place of co-interior angles, you can write it as angles on the same side of transversal as supplementary as well. And one more thing I would like to tell you, my dear students, as AB is parallel to PQ, MB is a part of AB and XQ is a part of PQ. So MB will also be parallel to XQ. I've written that on the right hand side. You can see MB is parallel to XQ. So beta, by co-interior angles I can write down angle 1+2 equal to 180 degree. Angle 1 is given to us 135 degree, as you can see. So substitute this value, 135 plus 2 equal to 180. 135 will go to the right hand side, it will get subtracted. So we have angle 2 is equal to 45 degree, right? Angle 2 हमारा 45 आ गया. Now one more thing, please focus on that RYS is a line. Ajit, can you tell me why 4 plus 5 is equal to 180 degree? Be a bit fast in responding. Angle 4 plus 5, they are lying on the same line, my dear. Yes, sir. So two angles lying on the same linear pair. Very good, Surya. Quickly response देना आपने. So beta, see that I have written RYS is a straight line. And there are two angles on it, as you can see, 5 and 4. So 5 plus 4 is equal to 180 degree. Angle 5 is given to us 40 degree. So in place of angle 5 you write down 40 degree plus 4 equal to 180 degree. तो बेटा 40 को राइट साइड पे ले जाइए, एंगल 4 आ जाएगा 180 माइनस 40 यानी कि 140 डिग्री. अब एंगल 4 भी आपके पास आ गया, पर हमारा मेन एम यहाँ पर एंगल 3 निकालना है, क्योंकि हमें XMY चाहिए, विच इज़ मेड अप ऑफ एंगल 2 and 3. 2 we have, now we have to find angle 3. You know that AB was parallel to RS. AB RS के parallel था. Now MB is a part of AB and YS is a part of RS.
So MB is parallel to YS. You can see that I have written it. Now please tell me which two angle will form co-interior in MB and YS. So angle 3 and Angle 3 and angle 4, my dear, not angle 2. So 3 plus 4 equal to 180 degree. As you can see, AB is parallel to RS, MB parallel to YS, MY is the transversal. तो 3 plus 4 180 बनाएंगे. तो 3 plus 4 बेटा अगर 180 एंगल 4 अभी हमने फाइंड आउट किया था 140 डिग्री लिखिए उसकी जगह. 140 को राइट साइड पे ले जाइए. एंगल 3 आ गया 180 माइनस 140 यानी कि 40 डिग्री. अब लास्ट एक्स एम वाई चाहिए था, अगर ध्यान हो आपको, वो हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3. इन प्लेस ऑफ एंगल 2 के प्लेस पे अभी 45 डिग्री आया था और 3 के प्लेस पे 40 डिग्री आया था. तो 2 प्लस 3 45 प्लस 40 85 डिग्री इज द आंसर. आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस. आई मेड लिटल चेंजेस बाय राइटिंग एंगल 1 2 3 4. को इंटीरियर ही मेन लग रही है बेटा. ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5. I want you guys to focus on this example. Just a second. yes sir. Just a second. Yeah. 1 second. Okay. Example number 5 says if a transversal intersect two lines such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the lines are parallel. Right? तो ध्यान से देखिए. पिक इज ऑलरेडी विद यू इन द ग्रुप. यू कैन हैव अ ग्लांस. एक ट्रांसवर्सल हमें दिया हुआ है एडी. ये बड़ा सा ट्रांसवर्सल है. ये इंटरसेक्ट कर रहा है दो लाइंस पी क्यू और आर एस को एट पॉइंट बी एंड सी रिस्पेक्टिवली. बी ई बाइसेक्टर दिया हुआ है एंगल ए बी क्यू का. आई रिपीट, रे बी ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू. और रे बी ई अगर बाइसेक्टर है ए बी क्यू का तो एंगल 1 और 2 हमारे आपस में इक्वल होंगे. सिमिलरली सी जी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी एस. अगर सी जी बाइसेक्टर है एंगल बी सी एस का तो एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल होंगे. तो राइट, ऐसे गिवन टू प्रूव आप लिख लीजिए. अब ये जो मैंने बोला एंगल 1 और 2 आपके आपस में इक्वल होंगे गिवन से, आप इन्हें ऐसे भी कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू. क्योंकि बेटा दो हाफ अगर आपस में इक्वल हैं तो वो पूरे के हाफ के भी इक्वल होंगे. राइट, तभी मैंने लिखा है एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी क्यू. दैट कम्स इन गिवन. एंड सेकेंड थिंग, एंगल 3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी एस. ये भी किस में आएगा? गिवन में आएगा. राइट. अब एक बात और देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. ये दिया हुआ था जो बाइसेक्टर है ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो पैरेलल हैं. मतलब कि ये भी आपको गिवन था कि जो बी ई है वो पैरेलल है किसके? सी जी के. और अजीत, अगर बी ई और सी जी पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बताएंगे कौन कौन से हैं? वेरी राइट, एंगल 1 और 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. इसे आप इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए. अब 1 2 और देखो 1 2 3 और 4 आपस में इक्वल हो जाएंगे. अगर आप इन तीनों को कंपेयर करेंगे तो हम कह सकते हैं हाफ ऑफ ए बी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी एस. हाफ से हाफ कट कर दीजिए. वी हैव एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू बी सी एस. पूरे इक्वल हो जाएंगे ए बी क्यू एंड बी सी एस. और बेटा अगर ए बी क्यू और बी सी एस इक्वल हो जाएंगे देन वी कैन राइट डाउन दैट इट इज़ अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. आप देख सकते हैं, सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर दीजिए. I'll resend you the pic. By mistake I have written here. One thing I would like to do, 1 और 2 में तो मैं एक गिवन लिखना चाहूँगा. और यहाँ जहाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर लिखा है यहाँ इसकी जगह क्या लिखेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये एफ बन रहा है. राइट, यस. दिस इज अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, हेंस पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस. बेटा अब किसी और मेथड से हमने इक्वल प्रूव कर लिया था ए बी क्यू और बी सी एस को. फिर हमने देखा ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइंस ए बी और पी क्यू और आर एस जो है वो आपस में पैरेलल हैं. ध्यान रखना. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 4 विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 103. आई एम रीडिंग इट फॉर यू. एग्जाम्पल 6, सॉरी. In the given figure, AB is parallel to CD and CD is parallel to EF.
Also EA is perpendicular on AB and angle BEF is equal to 55 degree. We have to find the values of x, y and z. तो ध्यान से देखिए क्लास, I have done a little modification. You can see in that figure. I have taken angle DEF as angle 1. ये तीनों ही पैरेलल हो जाएंगी. AB पैरेलल टू दे रखी है CD और CD पैरेलल टू EF दे रखी है. इन्हें मैंने 1 और 2 दिया, बाद में कंपेयर किए इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हो गई हैं. EA परपेंडिकुलर है AB पर, तो एंगल 2 हमारा 90 है, राइट. एंगल BEF, ये वाला BEF कह लो इसे, चाहे DEF कह लो, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग. 55 डिग्री दिया हुआ है. XYZ हमें निकालना है. तो जैसे कि 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो तीनों लाइंस आपकी पैरेलल आ जाएंगी. सबसे पहले CD पैरेलल टू EF को लेके चलते हैं. एंगल 1 प्लस एंगल Y इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? एंगल 1 प्लस एंगल Y इक्वल टू 180 डिग्री. बता सकते हैं क्यों? वेरी गुड, को इंटीरियर एंगल्स, वेरी राइट. एंगल 1 के प्लेस पे लिखिए 55, Y की जगह Y इक्वल टू 180. तो एंगल 155 दिया हुआ है, 55 को राइट साइड पे ले जाइए, Y आ जाएगा 180 माइनस 55 यानी कि 125 डिग्री. अब इसके बाद देखिए CD और AB आपस में पैरेलल हैं, तो बताइए X और Y क्यों इक्वल हैं? Sir, because they are corresponding angles. वेरी गुड. F बन रहा है, राइट, या 2L बन रहे हैं, आप ऐसे कह सकते हो. तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तभी X और Y आपस में इक्वल हैं 125 के, राइट. अब इसके बाद ध्यान से देखिए, AB एक स्ट्रेट लाइन है और एंगल 3 प्लस एंगल X 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से, राइट. या तो आप देख सकते हैं 3 प्लस एक्स इक्वल टू 180 है. X के प्लेस पे 125 इक्वल टू 180. 125 को राइट पे ले जाइए, 180 माइनस 125, तो 55 डिग्री आ गया एंगल 3. अब एंगल 3 हमारा 55 है, एंगल 2 हमारा 90 है. ABE में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए बेटा. एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस Z इक्वल टू 180 डिग्री. 2 के प्लेस पे 90, 3 अभी 55 आया है. यहाँ से Z फाइंड आउट कर लीजिए. Z प्लस 145 इक्वल टू 180. Z आ गया 180 माइनस 145 यानी कि Z आ गया 35. एंड आंसर इज X और Y दोनों 125 आ गए हैं और Z जो है वो 35 आ गया, राइट. इसके अलावा फोर्थ, यस सूर्या. सर ये 180 डिग्री इसलिए होगा कि ये प्रॉपर्टी ऑफ यस, दैट इज बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. वही अब मैं प्रूव कराने वाला हूँ नेक्स्ट. ध्यान से देखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल मैंने आपको सेंड भी कर रखी है. आपको पता है तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है. आप सुनते ज़रूर आए हैं, पर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम विल प्रूव इट, ठीक है. यहाँ PQR के 3 एंगल है, एंगल 1, 2 और 3. हमें प्रूव करना है एंगल P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 180 है, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 180. और गिवन में क्या है? सिर्फ एक ट्रायंगल PQR गिवन है. कंस्ट्रक्शन में P को लेफ़्ट और राइट ऐसे एक्सटेंड करना है कि XPY जो है वो पैरेलल होगी QR के, या हम कह सकते हैं XY पैरेलल होगी QR के, और XPY एक स्ट्रेट लाइन है, राइट. ओके, नाउ मूविंग फर्दर. ध्यान से देखिए एंगल 4 और एंगल 2, क्योंकि XPY पैरेलल है QR के. आप चाहें तो पैरेलल का बेटा सिंबल भी बना सकते हैं ऐसे. आई रिपीट, XPY पैरेलल है, यानी कि XY पैरेलल है QR के, तो 4 और 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर है और 5 और 3 भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर है. और क्योंकि XPY एक स्ट्रेट लाइन है, तो बेटा एंगल 4 प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट. आई रिपीट, 4 प्लस 1 प्लस 5, लेकिन ये किससे 180 है? सम ऑफ ऑल एंगल्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180, उससे ये 180 हुई है, राइट. आपको पता है 2 से ज़्यादा एंगल लाई करते हैं तो वो सम ऑफ एंगल्स वाली प्रॉपर्टी आती है. अब अगर आप तीनों को कंपेयर करेंगे बेटा, 4 की जगह लिख दीजिए 2, 1 की जगह 1 रहने दीजिए और 5 की जगह लिख दीजिए 3. उसे शफल कीजिए तो आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 180. उन्हें आप चाहे तो ऐसे भी 1 की जगह P, 2 की जगह Q और 3 की जगह R भी आप लिख सकते हैं, राइट. तो क्लास एंगल सम प्रॉपर्टी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अधिकतर आती है प्रूव करने को. थैंक यू एवरीवन.